لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ سورہ جو ہے سورۃ البقرہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے، آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی دور کی سورہ ہے۔ اب یہاں پہ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا رخ ایسے رکھتے تھے کہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ خانہ کعبہ اور پھر وہاں اسی سیدھ میں بیت المقدس تھا۔ اب جب یہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ مسئلہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف ان کا بیک ہو جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کریں گے کہ تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، اور جب حکم آیا تو جب جیسے صفیں ہوتی ہیں نا کہ پہلے امام ہے پھر آدمی ہے پھر عورتیں ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ قبلہ کا حکم آیا تو ایک دم سے لوگوں نے اپنا رخ پھیر دیا، پوری کی پوری صفیں چینج ہوئی کہ پورے امام اس سائڈ پہ گئے اور پھر آدمی جو ہے وہ انہوں نے اپنا رخ چینج کیا، اور پیچھے والی صف میں جو عورتیں تھیں وہ بالکل اس سائڈ پہ چلی گئیں، اور کس طرح سے سمینا وات آنا کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جس میں منافقین کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی تھی، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافق تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا پیغام آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم آ جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا، وہی ہم انشاءاللہ ان آیات میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ کہیں گے احمق لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، تھے وہ جس پر، کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، اور ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل، تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلات تھے تم جس پر، مگر یہ کہ معلوم علیحدہ کر لیں ہم کہ جو تابع رہتا ہے رسول کا اس کا، اور جو پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں، اور بے شک تھا یہ تحویل کعبہ کا جو حکم تھا یہ بہت گراں تھا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے دین کو، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، سو یقیناً پھیر دیں گے ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جہاں کہیں ہوا کرو تم تو پھیر لیا کرو تم اپنے چہرے کو اس کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی
गई है किताब वो खूब जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो वो करते हैं। और अगर ले आओ तुम उन लोगों के पास जिन्हें दी गई है किताब तमाम निशानियां, तो ना पैरवी करेंगे वो तुम्हारे किबले की और ना तुम पैरवी करने वाले हो उनके किबले की, और ना उनमें से बास पैरवी करने वाले हैं बास के किबले की। और अगर तुम पीछे चलोगे उनकी ख्वाहिशात के इसके बाद कि जबकि आ चुका तुम्हारे पास इल्म, तो यकीनन तुम तब तो हो जाओगे जालिमों में। और लोग जिनको दी है हमने किताब वो पहचानते हैं उसको जिस तरह पहचानते हैं वो अपने बेटों को, और यकीनन एक फरीक इनमें से है कि छुपाते हैं वो हक को और वो जानते हैं इस बात को। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, के हक है तुम्हारे रब की तरफ से तो ना होना तुम हरगिज शक करने वालों में से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और हर एक के लिए एक सिमत मुकर्रर है, वो मुंह करता है जिसकी तरफ, तो तुम सबकत हासिल करो नेकियों में, जहां कहीं होगे तुम ले आएगा तुमको अल्लाह इकट्ठा करके, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जिस जगह से निकलो तुम फेर लिया करो नमाज में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ, और बेशक ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। और जिस जगह से निकलो तुम फेर लिया करो नमाज में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ, और जहां कहीं हो तो फेर लिया करो अपने चेहरों को इसी की तरफ, ताकि ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया इनमें से हैं। सो मत डरना उनसे और डरते रहना मुझी से, ताकि मैं पूरी कर दूं अपनी नेमत तुम पर और ताकि तुम हदायत पाओ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमत जो हदायत की है वो पूरी करने का जो जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि तुम अल्लाह के हुक्म मानो और सिर्फ अल्लाह से डरते रहो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे अपनी नेमतें पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस तरह भेजा हमने तुम में से एक रसूल तुम ही में से, जो पढ़कर सुनाता है तुमको हमारी आयात और पाक करता है तुम्हें और तालीम देता है तुम्हें किताब और हिकमत की और सिखाता है तुम्हें वो जो तुम नहीं जानते थे। सो याद करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, सो याद किया करो तुम मुझे और मैं याद रखूंगा तुम्हें, और शुक्र अदा करो मेरा और ना करो नाशुक्री मेरी। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला तकूलू, और ना कहो उसकी निस्बत जो कत्ल किए जाएं अल्लाह की राह में कि मुर्दा हैं, बल्कि जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। अब देखिए कई दफा ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे हमें पता होता है कि जो शहीद हो गए हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो मुर्दा नहीं है, वो खाते हैं, वो जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं, तो हम ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं, अच्छा वो कैसे खाते होंगे, अच्छा वो जिंदा है तो क्या वो फिर आते हैं इस दुनिया में, क्या वो विजिट करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कह दिया ना कि तुम्हें शऊर नहीं है, तो बस फिर हमें समेना व अताना ही करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इतना डर लगता है मुझे इस आया को पढ़ते हुए कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सुम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाहु अकबर। और जरूर ब जरूर आजमाएंगे हम तुम्हारी किसी कदर खौफ से, भूख से और नुकसान से, अम्वाल के और जानों और फलों में, और बिशारत सुना दो सब्र करने वालों को। और यहाँ पे देखिए कितनी खुशखबरी, एक तसल्ली होती है बेशई का लफ्ज पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि सारी जान लेके, सारा नुकसान करके, सारी बीमारी देके, बेशई के लफ्ज से कि कुछ किसी कदर चीज लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों के लिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, और वो लोग के जब आती है उन पर कोई मुसीबत तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। और यही हमारा कलमा होना चाहिए कि जब अल्लाह की आजमाइश आ जाए तो हम राजी हो जाए उस पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तेरे ही बंदे हैं और तेरी ही तरफ लौट के जाना है। यही लोग हैं जिन पे अनायतें हैं उनके रब की तरफ से और रहमत है, और यही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक सफा और मरवा निशानियों में से है अल्लाह की, तो जो शख्स हज करे खाना काबा का या उम्रा करे तो नहीं कुछ गुनाह उस पर के तवाफ करे वो और इन दोनों का, और जो कोई खुशी से करे नेक काम तो यकीनन अल्लाह कदरदान है, सब जानने वाला है। यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो नाजिल किया हमने वाज़े अहकामात में से और हदायत को इसके बाद के जो कुछ खोल खोल कर बयान कर दिया हमने लोगों के लिए किताब में, वही लोग हैं लानत करता है जिन पर अल्लाह
और लानत करते हैं इन पर तमाम लानत करने वाले। अब देखिए कितना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को, जो होता है ना कि लपेट लपेट के बताते हैं, खुलेआम नहीं बताते हैं, डरते हैं लोगों को बताते हुए, और वो बात ही बदल देते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी बड़ी यहाँ पे बात है कि अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को छुपा जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली और वाज़े बयान कर दिया, तो यही लोग हैं, माफ करूंगा मैं उनको और मैं बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला हूं। यहाँ पे तौबा की शर्त भी बता दी कि अगर उन्होंने कोई अल्लाह के अहकामात छुपाए हैं, नहीं बताए ठीक तरह से, तो वो तौबा करें और वो वापस बयान करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देंगे। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और मर गए जबकि वो काफिर ही थे, तो यही लोग हैं जिन पर है लानत अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की, हमेशा रहेंगे वो इसी में, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, नहीं कोई माबूद इसके सिवा, वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक पैदा करने में आसमान के और जमीन के और एक दूसरे के पीछे आने जाने में, रात और दिन के, और कश्तियों में जो चलती हैं समुद्र में फायदे के लिए लोगों के, और जो नाजिल किया अल्लाह ने आसमान से पानी, फिर जिंदगी अता की, और इससे जमीन के बाद इसके मुर्दा हो जाने के, और फैला दिए इसमें हर तरह के जानदार, और हवाओं की गर्दिश में और बादलों में जो घिरे रहते हैं दरमियान में आसमान और जमीन के, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि इंदादा, अल्लाहु अकबर, और लोगों में से वो भी हैं जो बनाते हैं सवाए अल्लाह के दूसरों को शरीक, मोहब्बत करते हैं उनसे जैसे मोहब्बत करने का हक है अल्लाह से। और वो लोग जो ईमान लाए हैं उनको है सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की। और काश आप देख लेते वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जब देखेंगे अजाब कि कुव्वत अल्लाह की है सबके सब, तो ये कि अल्लाह बहुत सख्त है अजाब देने वाला। जब बेजारी जाहिर करेंगे वो लोग जिनकी पैरवी की थी, उन लोगों ने जिन्होंने पैरवी की थी, और देख लेंगे अजाब को और मुनकता हो जाएंगे उनके वसाइल, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी कि काश क्यों होता हमारे लिए फिर लौट जाना, तो बेजारी का इजहार करते हम इनसे जिस तरह ये बेजार हैं आज हमसे, इसी तरह दिखाएगा उनको अल्लाह इनके अमाल हसरतें बनाकर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके लिए सिर्फ दोज़ख का अजाब है। देखिए आज दुनिया में हम जिनकी पैरवी करते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के खिलाफ हमें लेके जाते हैं, या हमारा अपना ही दिल होता है कि हम उनकी पैरवी करें, तो उस दिन वो सब भाग जाएंगे और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लोगों, खाओ वो चीजें जो है जमीन में हलाल और पकीजा, और ना पैरवी करो कदमों के शैतान की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस वो हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाई का, और ये कि कहो तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात जो नहीं तुम जानते। और जब कहा जाता है उनसे कि पैरवी करो उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम पैरवी करेंगे उस चीज की पाया है हमने जिस पर अपने बाप दादा को, अगरचे के थे उनके बाप दादा के ना समझ रखते थे कुछ भी, और ना ही वो सीधी राह पर थे। वह मसलुल्लज़ीना कफरू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, इसकी सी मिसाल है जिसने पुकारा ऐसी चीज को ना सुन सके जो सिवाय पुकारने और चलाने के, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो इन्हें समझ नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, खाओ पकीज़ा चीजों में से जो अता फरमाई है हमने तुमको, और शुक्र अदा करो अल्लाह का अगर तुम उसी की इबादत करते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शुक्र करने वाला बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमें ये दुआ भी सिखाई थी कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मास रदी अल्लाह अन्हु को कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत मास फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये वसीयत की थी, तुम हर नमाज में ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं को याद करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कबूलियत बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, दर हकीकत हराम कर दिया है उसने तुम पर मुर्दार और खून और गोश्त खंजीर का, और वो पुकारा जाए नाम जिस पर गैर अल्लाह का, बस जब मजबूर हो जाए कि ना हो सरकश और ना हद से बढ़ने वाला, तो नहीं है कुछ गुनाह उस पर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम
रहम करने वाला है। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी रुखसत है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो हराम कर दिया गया, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आता है कि किसी की जान जाने का डर होता है कि वो मर ही जाएगा, तो बस उतना सा जो उसकी जान बचाने के लिए जरूरी है तो वो उस वक्त हराम भी खा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यक्तुमूना मा अंज़लल्लाह, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने किताब में, और हासिल करते हैं इसके बदले कीमत थोड़ी सी, ये लोग नहीं भरते अपने पेटों में मगर आग, और ना कलाम करेगा इनसे अल्लाह क़यामत के दिन, और ना पाक करेगा उनको, और उनके लिए अजाब है दुख देने वाला। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलालता बिलहुदा, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही को हदायत के बदले और अजाब मगफरत के बदले, और कैसे सब्र करने वाले हैं ये जहन्नम पर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये इसलिए कि अल्लाह ने नाजिल फरमाई किताब हक के साथ, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया इस किताब में यकीनन जिद में हो गए बहुत दूर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, फर्ज कर दिया गया तुम पर किसास मकतूलों के बारे में, कत्ल किया जाए आजाद बदले में आजाद के, गुलाम बदले में गुलाम के, औरत बदले में औरत के। सो वो जो माफ कर दिया जाए उसको इसके भाई की तरफ से कुछ तो पैरवी करना है दस्तूर के मुताबिक, और अदा करना है इसके वर्षों को आसान तरीके से। ये आसानी है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है। फिर जो ज्यादती करे इसके बाद तो उसके लिए अजाब है दुख देने वाला, और तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है ए अक्लमंदो, ताकि तुम खून रेजी से बच जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फर्ज किया गया तुम पर जब आ पहुंचे तुम में से किसी पर मौत, अगर छोड़ दे वो माल वसीयत करना वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक हक है डरने वालों पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो बदल डाले बाद इसके जो उसने सुना इस वसीयत को, तो बस इसका गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदलेंगे, बेशक अल्लाह सब सुनने वाला और जानने वाला है। फिर किसी को अंदेशा हो वसीयत करने वाले की तरफ से हक तलफी या गुनाह का, फिर सुलह करा दे इसके दरमियान तो नहीं है कुछ गुनाह उस पर, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, इस तरह फर्ज किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। चंद दिन गिनती के, तो जो हो तुम में से बीमार या सफर में तो शुमार पूरा कर ले दूसरे दिनों में, और इन लोगों पर जो इस रोजा रखने की ताकत रखते हैं लेकिन ना रखे तो फिदिया है खाना खिलाना एक मस्कीन को। फिर जो कोई करे अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी तो ये ज्यादा अच्छा है उसके हक में, और अगर रोजा रखो तुम तो ये बहुत बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम जानते हो। रमजान का महीना है वो जो नाजिल किया गया जिसमें कुरान जो हदायत है लोगों के लिए, और जिसमें रोशन निशानियां हदायत की, और जो हक को बातिल को अलग करने वाला है। तो जो कोई मौजूद हो तुम में से इस महीने तो लाजिम है उस पर के रोजे रखे, और जो हो बीमार या सफर में तो शुमार पूरा करे दूसरे दिनों में। चाहता है अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी और नहीं चाहता तुम्हारे हक में सख्ती, और ताकि तुम पूरा कर लो शुमार और किब्रियाई बयान करो अल्लाह की इस पर जो अता की उसने तुमको हदायत, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। अब ये आया जो है ये मेरी फेवरेट तरीन आयात में से है। आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या हुक्म दे रहे हैं कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावति दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और जब पूछे तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में तो बेशक मैं करीब हूँ, जवाब देता हूँ पुकार का पुकारने वाले की, जब भी वो मुझे पुकारता है तो चाहिए उनको कि हुक्म माने वो मेरा और ईमान रखे मुझे पर ताकि वो नेक राह पा सकें। अल्लाह अकबर। देखें यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जब भी मेरा बंदा, ऐसा नहीं है कि जाए नमाज पे बैठा होगा, हरम में होगा या किसी ऐसी जगह पे होगा तब मैं उसकी दुआ सुनता हूँ, जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शर्त भी रखी कि उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब हम हुक्म की पैरवी करते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोजों की रातों में बेहजाब होना अपनी औरतों के पास,
वो लिबास हैं तुम्हारे और तुम लिबास हो उनके, जानता है अल्लाह बेशक तुम खयानत करते थे अपने आप से, तो मेहरबानी की उसने तुम पर और दरगुजर फरमाया उसने तुमसे, तो अब मुबाशरत करो तुम उनसे, तलब करो उसको जो लिख दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और खाओ और पियो यहाँ तक कि अलग नजर आने लगे तुमको सुबह की सफेददारी रात की स्याहदारी पर फजर के वक्त, और फिर पूरा करो रोजा रात तक, और मत मुबाशरत करो तुम इनसे जबकि तुम इत्तिकाफ में हो मस्जिदों में, ये हदूद है अल्लाह की कि ना उसके करीब जाना। इसी तरह से खोल खोल कर बयान करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी आयात को, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार कर सको। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और ना खो एक दूसरे के अम्वाल आपस में नाहक तौर पर, और ना पहुंचाओ उसको हाकिमों के पास ताकि खा जाओ कुछ हिस्सा लोगों के माल का नाजायज तौर पर, हालांकि तुम जानते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं पूछते हैं तुमसे नए चांद के बारे में, कह दो कि वो वक्त मालूम करने का जरिया है लोगों के लिए, और हज का वक्त भी मालूम करने का, और नहीं है नेकी ये कि आओ घरों में इसके पिछवाड़े की तरफ से, बल्कि नेकी ये है कि जो परहेजगार हो और आया करो अपने घरों में अपने दरवाजों से, और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फला पाओ। ये एक मुशरिकीन मक्का की एक आदत थी, वो जब भी कई सफर पे जाते थे तो वापस अगर उनको कोई चीज याद आती थी तो उनको वो बदशगुनी समझते थे कि अगर हम दरवाजे से जाएंगे तो पीछे से टाप के अंदर आते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी बात को फरमा रहे हैं कि ये बदशगुनी नहीं है, नेकी वही है जो तुम करते हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और ना ज्यादती करना, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को, और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है ना, ये जिस वक्त वो मैदान जंग में होंगे, ये उस वक्त की आया है। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि मैदान जंग में तो डेफिनेटली जब दुश्मन सामने है तो आप उसको छोड़ेंगे तो नहीं ना, कि ठीक है हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे तो फिर वो आपको मार देगा। तो इसलिए ये हुक्म जो है ये मैदान जंग का है। और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें, और निकाल दो उनको जिस जगह से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कहीं बढ़कर है कत्ल से, और ना लड़ो तुम इनसे मस्जिद हराम की करीब जब तक ना लड़े वो तुमसे वहां, फिर अगर वो तुमसे लड़े तो कत्ल कर डालो उनको, यही सजा है काफरों की, फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और रहम करने वाला है। और लड़ते रहो इनसे यहां तक कि ना रहे फितना और ना हो जाए दीन अल्लाह ही का, फिर अगर वो बाज आ जाए तो नहीं ज्यादती मगर जालिमों पर। हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का, और सब हुर्मतें एक दूसरे का बदला है, बस जो ज्यादती करेगा तुम पर और तुम भी ज्यादती करो उस पर वैसी ही जैसे ज्यादती की है उसने तुम पर, लेकिन अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह साथ है मुत्तकियों के। तो खर्च किया करो अल्लाह की राह में, और ना डालो अपने हाथ खुद हलाकत में, और नेकी करो बेशक अल्लाह महबूब रखता है नेकी करने वालों को। और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फिर अगर रोक लिए जाओ तुम तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दो, और ना मंडवाओ अपने सरों को जब तक ना पहुंच जाए कुर्बानी अपने मुकाम पर। फिर जो हो तुम में बीमार या उसको हो तकलीफ, इसके सर में तो फिदिया है रोजा या सदका या कुर्बानी से। फिर जब तुम अमन में हो तो जो उठाना चाहे फायदा उम्रे करने का हज के साथ, तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दे। फिर जो ना पा सके कुर्बानी का जानवर तो रोजा रखे 3 दिन हज के दौरान, और 7 दिन जब वो वापस आ जाए, ये हुए पूरे 10 दिन। और ये इजाजत इसलिए है कि ना हो जिसके अहलो अयाल करीब मस्जिद हराम के। और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो बेशक अल्लाह सख्त है अजाब देने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हज के महीने मालूम है, फिर जो लाजिम कर ले इसमें हज तो नहीं है जायज इख्तलात औरतों से, और ना फिस्क और ना झगड़ा हज के दरमियान। और जो तुम करोगे कोई नेकी जानता है उसे अल्लाह, और ज़ादे राह साथ लेकर जाओ, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो तकवा है। और डरते रहो मुझे से ए अहले अकल, और नहीं है तुम पर कुछ गुनाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर कोई गुनाह के तलाश करो रिस्क हज के दिनों में अपने रब के पास। फिर जब वापस होने लगो अरफात से तो जिक्र करो अल्लाह का मशर हराम मुजदलफा के नजदीक, और जिक्र करो इसका जैसे हदायत दी गई है तुमको, और अगरचे थे तुम इससे बेहतर इनमें से जो गुमराह थे। फिर वापस हो जो जहां से वापस होते हैं सब लोग, और मगफरत मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये दुआ भी सिखा दी कि दुनिया भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अपनी रहमत की जगह बना दे, और आखिरत में भी हम पे रहम करना। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन
वन्नार। और उनमें से कोई वो भी है जो कहता है कि हमारे रब अता फरमा हमको दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और महफूज रख हमें अजाब से दोज़ख के। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते यही लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उसका जो कमाया उन्होंने, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जिक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद दिनों में, फिर जो जल चला गया 2 ही दिनों में तो नहीं कुछ गुनाह उस पर, और जो ठहरा रहा तो नहीं कुछ गुनाह उस पर। ये इसलिए कि जिसने तकवा इख्तियार किया। और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो बेशक तुम सब इसी के पास जमा किए जाओगे। और लोगों में से कोई है कि दिलकश मालूम होती है तुमको जिसकी बात दुनिया की जिंदगी में, और वो गवाह बनाता है वो अल्लाह को इस पर जो उसके दिल में है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब वो लौटता है तो दौड़ता फिरता है जमीन में ताकि फैलाए फसाद इसमें और बर्बाद करे खेती और नस्लों को, और अल्लाह नहीं पसंद करता फसाद करने वालों को। और जब कहा जाता है उससे कि डरो अल्लाह से, तो आमादा करता है उसको गुरूर नफ्स गुनाह पर, सो काफी है उसको जहन्नम, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और लोगों में से कोई वो भी है कि बेच डालते हैं अपनी जान को हासिल करने के लिए खुशनुदी अल्लाह की, और अल्लाह बहुत मेहरबान है बंदों पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, दाखिल हो जो इस्लाम में पूरे के पूरे, और ना चलो नक्शे कदम पर शैतान के, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर लड़खड़ा जाओ तुम बाद इसके कि आ चुके हैं तुम्हारे पास वाज़ेह अहकामात, तो जान रखो बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या इंतजार करते हैं ये सिवाय इसके कि आ जाए उनके पास अल्लाह साहिबानों में से बादलों के और फरिश्ते, और फैसला किया जाए उनके मामलात का, तो अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है सब मामलात को। पूछो बनी इसराइल से कि कितनी दी थी हमने तुमको निशानियां खुली, और जो बदल डालते हैं अल्लाह की नेमत को इसके बाद कि जो आ चुकी हो इसके पास, तो यकीनन अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। खुशनुमा कर दी उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया था दुनिया की जिंदगी, और वो तमस्खर करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाते हैं, और वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया इनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन। और अल्लाह रिस्क देता है जिसको चाहता है, बेहिसाब रिस्क देता है। थे सब इंसान उम्मत एक ही, तो भेजिए अल्लाह ने अंबिया बिशारत देने वाले और डराने वाले, और नाजिल की इसके साथ किताब बरहक ताकि फैसला कर दे लोगों के दरमियान इन अमूर में इख्तलाफ करते थे वो जिनमें, और नहीं इख्तलाफ किया इनमें मगर उन लोगों ने जिनको दी गई थी किताब इसके बाद, जो कि आ चुके थे इनके पास वाज़ेह अहकामात, जिद की बिना पर आपस में। फिर हदायत दी अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाए इस अमर में इख्तलाफ करते थे वो जिसमें हक है अपनी इज़्ज़त से, और अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है सीधी राह की। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या ख्याल करते हो तुम के दाखिल हो जाओगे जन्नत में, जबकि अभी नहीं पेश आई तुमको मुश्किलें उन लोगों की सी जो हो गुजरे तुमसे पहले, पहुंची थी उनको बड़ी सख्तियां और तकलीफें और हला मारे गए थे वो, यहाँ तक कि पुकार उठा रसूल और वो लोग जो ईमान लाए थे उनके साथ कि कब आएगी मदद अल्लाह की, आगाह हो जाओ बेशक मदद अल्लाह की करीब ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दरियाफ्त करते हैं वो तुमसे कि क्या खर्च करे, कह दो कि जो कुछ खर्च करो तुम माल में से तो है वो वालिदैन के लिए और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों मोहताजों और मुसाफिरों के लिए, और जो करोगे तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भलाई, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खूब जानते हैं। फर्ज कर दिया गया है तुम पर जंग करना और वो नागवार तो होगा तुम्हें, और हो सकता है कि नापसंद करो तुम एक चीज को और वो हो बेहतर तुम्हारे हक में, और हो सकता है कि तुम पसंद करो एक चीज को और वो नुकसानदेह हो तुम्हारे लिए, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और आयत नंबर 217 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दरियाफ्त करते हैं वो तुमसे हुर्मत वाले महीने के बारे में कि जंग करना इसमें कैसा है, कह दो कि जंग करना इसमें बड़ा गुनाह है और रोकना अल्लाह की राह से, और कुफर करना इसमें अल्लाह से और रोकना मस्जिद हराम से, और निकाल देना इससे लोगों को इससे भी ज्यादा गुनाह है, और अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा फितना है। और फितना अंगेजी बढ़कर गुनाह है खून रेजी से, और नहीं रोकेंगे वो कभी भी तुमसे, लड़ते रहेंगे वो तुमसे हमेशा, यहाँ तक कि फेर दें वो तुमको तुम्हारे दीन से अगर उनको इसका हक हो। और जो कोई फिर जाएगा तुम में से अपने दीन से और फिर वो मरे जबकि वो काफिर ही हो, तो यही लोग हैं कि उन्होंने जाया कर दिया अपनी जिंदगी को। अब यहाँ पे हुआ क्या था वाकया
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा था मुशरिकीन मक्का की जो एक्टिविटीज थी उस पर नजर रखने के लिए, और वो रजब के आखिरी दिनों की बात है और बिल्कुल आखिरी डेट थी, और सहाबा को उस दिन पे गलती लग गई जिसकी वजह से जब उनकी थोड़ी सी आपस में झड़प हुई तो उसमें कोई एक काफिर जो था वो मारा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ये कंप्लेन लेके आए कि हुर्मत वाले महीने में, क्योंकि उस जमाने में भी ये था कि इवन मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, लेकिन वो हुर्मत वाले महीनों की ऐसे कदर करते थे कि अगर बाप का कातिल भी उनके सामने आ जाता था तो उसको कुछ नहीं कहते थे। अब वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि फितना जो है वो कत्ल से भी बढ़ के है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिनके अमाल दुनिया में और आखिरत में जाया हो गए यही लोग हैं साबित दोज़ख, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में, वही लोग उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसर, दरियाफ्त करते हैं वो तुमसे शराब के बारे में और जुए के बारे में, कह दो इन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा और कुछ फायदे हैं इसमें लोगों के लिए, और गुनाह इन दोनों के कहीं ज्यादा है फायदे से। और दरियाफ्त करते हैं वो तुमसे कि क्या खर्च करे, कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इसी तरह खोलकर बयान करते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए अहकामात, और ताकि तुम गौर करो। अब यहाँ पे देखिए कि शराब और जुए का जिक्र इकट्ठा अब जहां पे भी पढ़ेंगे वहां पे हमेशा इसका जिक्र इकट्ठा आता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो शराब और जुए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है अच्छा शराब मना है तो वो आराम से ताश खेल रहे होते हैं, और ताश में वो जुआ खेल रहे होते हैं, वो थोड़े से जी अब तो थोड़े से पैसे लगा रहे हैं, लेकिन जुआ एक पैसे का भी जुआ है और एक मिलियन भी अगर लगाते हैं तो उसका भी जुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बेसिकली इन दोनों चीजों की खबासत से मना कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दुनिया में और आखिरत में उनके लिए रुसवाई है, और दरियाफ्त करते हैं वो तुमसे यतीमों के बारे में, कह दो कि इस्लाह इनकी बेहतर है, और अगर तुम मिला लो इनको अपने साथ तो वो तुम्हारे भाई भाई ही हैं, और अल्लाह जानता है खराबी करने वालों को इस्लाह करने वालों से, और अगर चाहता अल्लाह तो तकलीफ में डाल देता तुमको, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पे जो हुक्म आया था यतीमों के बारे में, और इतना सख्त हुक्म था कि यतीम का माल अगर थोड़ा सा भी तुम गलती से ले लेते हो या फिर जानबूझ के तुम उनके साथ कोई ज्यादती करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी पकड़ करेंगे। तो अब सहाबा इतना डर गए कि उनके साथ जैसे खाना पकाने वाली चीज होती थी, क्योंकि उन दिनों में जंगें भी इतनी हो रही थी, और बहुत से यतीम बच्चे थे जिनकी वो सरपरस्ती करते थे, और खानदान में से भी अगर कोई यतीम होता था तो उसकी सरपरस्ती करते थे। अब यहाँ पे उनको ये डर हो गया कि अगर इतना गुनाह है तो वो थोड़ी थोड़ी सी चीजों के लिए भी परेशान होना शुरू हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि अगर वो तुम्हारे भाई हैं, अगर तुम उनमें से उनके माल में से, क्योंकि अगर जो उनकी सरपरस्ती कर रहा है उसके पास इतना माल नहीं है कि वो अगर अपने खर्चा नहीं चला सकता, तो अगर वो उसी में से खाना खा लेता है तो उसमें से कोई गुनाह नहीं होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना निकाह करना तुम मुशरिक औरत से जब तक वो ईमान ना ले आए, और एक मोमिन लोंडी बेहतर है मुशरिक औरत से अगरचे वो बहुत पसंद हो तुम्हें, और ना निकाह करना तुम अपनी अपनी औरतों का मुशरिक मर्दों से जब तक कि ना ईमान लाए वो। अब यहाँ पे देखिए कि ये बात इतनी लोगों में आम होती है कि निकाह जब करना है, क्योंकि गैर मुस्लिम से जब वहां पे निकाह करते हैं, बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, तो ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम उनसे निकाह करते हैं तो वो तो मुशरिक नहीं है। और लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो ये कह दिया कि कबुरत कलिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बात कहते हैं कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो फिर ये शिर्क नहीं तो क्या है। तो इसलिए बहुत सोचने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर अहले किताब के साथ निकाह की इजाजत दी है, लेकिन ये बहुत बड़ी शर्त है कि वो शिर्क ना करने वाले हों, इसलिए ऐसी क्वेश्चंस जो है वो पहले से क्लियर पूछ लेने चाहिए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना निकाह करना तुम अपनी औरतों का मुशरिक मर्दों से जब तक कि ना ईमान लाए वो, और एक मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक मर्द से। देखें एक गुलाम जो है अगर वो कितना भी अच्छा है वो मुशरिक है लेकिन उससे शादी नहीं कर सकते, अगर उसके बदले में अगर ऑपोजिट अगर कोई गुलाम है और वो मुसलमान है तो उससे करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला रगबत दे रहे हैं। अगर जी वो बहुत पसंद हो तुम्हें, ये लोग बुलाते हैं दोजख की तरफ और अल्लाह बुलाता है जन्नत व मग़फ़िरत की तरफ अपने इज़्न से,
और खोल कर बयान करता है अपनी आयात को लोगों के लिए ताकि वो नसीहत पकड़ें। और दरियाफ्त करते हैं वो तुमसे हैज के बारे में, कह दो कि नजासत है सो किनारा कश रहो औरतों से अयाम हैज में, और ना मुकारबत करो इनसे जब तक कि वो पाक ना हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाए तो जाओ उनके पास जहां से हुक्म दिया है तुमको अल्लाह ने, बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वालों को और पसंद करता है पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। तुम्हारी औरतें खेतियां हैं तुम्हारी, तो जाओ अपनी खेती में जिस तरह तुम चाहो और आगे भेजो अपने लिए, और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो यकीनन तुम्हें हाजिर होना है उसके रूबरू, और बशारत सुना दो ईमान वालों को। और ना बनाओ अल्लाह के नाम का हीला अपनी कस्मों के लिए कि नेकी ना करो और ना परहेजगारी करो और सुलह ना करो लोगों के दरमियान, और अल्लाह सब जानता है। अब यहाँ पे ये था कि मुशरिकीन मक्का जो थे उनकी एक जैसे आदत होती है, वो ऐसे ही कस्में खाते थे। वॉज नॉट लाइक कि वो जानबूझ के कस्में खा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि जो ऐसी आदतन वो कस्में खाते हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मुआखजा किस पे करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते नहीं मुआखजा करेगा तुमसे अल्लाह इन पर जो लग़्व है तुम्हारी कस्में, लेकिन जो मुआखजा करेगा उन पर जो खाइयां तुमने दिलों से, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और बुर्दबार है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो कसम खा ले ना जाने की अपनी औरतों के पास इंतजार करना है 4 महीने। अब यहाँ पे ईला की बात हो रही है कि उस जमाने में भी ये हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईला किया था कि जब वो अपनी बीवियों से जब उन्होंने ये कहा कि अब तो मुसलमान जो है उनको इतना माले गनीमत भी मिल गया हुआ है, उनके हालात भी अच्छे हो गए हैं, तो हमारा भी खर्चा थोड़ा ज्यादा कर दे, तो उस पर थोड़ी सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे ईला किया था। और ये उनमें एक रस्म भी थी कि वो कसम खा लेते थे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी एक हद बता दी कि 4 महीने के अंदर अगर तुम रुजू नहीं करते तो फिर तुम्हें एक फैसला करना है, या तो तुम रुजू करोगे या फिर तुम तलाक दोगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन लोगों के लिए जो कस्में खा ले ना जाने की अपनी औरतों के पास इंतजार करना है 4 महीने, फिर अगर वो रुजू कर ले तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबान है, और अगर इरादा कर ले वो तलाक का तो बेशक अल्लाह सब सुनता और जानता है। और तलाक याफ्ता औरतें रोके रखें अपने आप को 3 हैज तक, और नहीं जायज उनके लिए कि छुपाए वो इसमें जो पैदा किया है अल्लाह ने उनके रहमों में, अगर वो ईमान रखती हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तलाक याफ्ता औरतों के लिए 3 हैज की जो इद्दत है उसकी बात हो रही है कि अगर एक तलाक जैसे देते हैं उसके बाद 3 हैज की इद्दत है, फिर दूसरी तलाक है, फिर 3 हैज की इद्दत है, और लेकिन जब तीसरी दफा तलाक होगी तो फिर रुजू नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो औरत प्रेग्नेंट है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि उसको इस बात को नहीं छुपाना चाहिए अगर वो ईमान रखती है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और उनके खामद ज्यादा हकदार है उन्हें लौटा लेने के लिए इस मुद्दत में अगर वो चाहे सुलह करना। अब ये पहली और दूसरी तलाक की बात है कि जब वो इद्दत के अंदर हो तो उस वक्त उनके खामद ज्यादा हकदार हैं उनको लौटाने में, और इन औरतों का हक भी वैसा ही है जैसा कि हक मर्दों का। इन औरतों के ऊपर दस्तूर के मुताबिक और मर्दों को हासिल है इन पर एक दर्जा, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा वाली बात आती है, तो एक दर्जा जो उनको ज्यादा दिया है वो इस वजह से कि उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा दी है, क्योंकि आदमी जो कमाता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों पे खर्च करे, लेकिन अगर औरत कमाती है तो उस पर जिम्मेदारी नहीं और उससे पूछा भी नहीं जाएगा। तो आदमी पे जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो उसी का दर्जा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदमी को ज्यादा भी दिया है। तलाक मरतान के तलाक 2 बार है, तो फिर रोक लिया जाए उम्दा तरीके से या रुखसत कर दिया जाए भलाई के साथ, और नहीं जायज तुम्हारे लिए कि वापस ले लो इसमें से जो दे चुकी हो तुम उनको जो कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तलाक 2 मरतबा मीन्स के पहली तलाक के बाद अगर वो इद्दत कंप्लीट करती है फिर दूसरी तलाक होती है उसमें रुजू का हक है, लेकिन तीसरी तलाक के बाद रुजू का हक नहीं रहता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो ये फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम उनको दे चुके, जो हक महर तुमने उनको दिया है उनसे वापस ना लो। अब यहाँ पे आप देखिए कि आजकल क्या होता है, जब अल्लाह ना करे तलाक का मामला किसी घराने में पेश आता है तो किस तरह से लोग उनके साथ सलूक करते हैं, इधर वे लड़का और लड़की दोनों की तरफ से। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका क्या तरीका बता रहे हैं,
اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکے ہو تم ان کو، مگر یہ کہ ڈرے دونوں کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حدود کو۔ پھر اگر ڈر ہو تمہیں یہ بھی کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو دونوں اللہ کی حدود کو، تو نہیں ہے کچھ گناہ دونوں پر اس میں جو وہ عورت دے ڈالے کچھ فدیہ بدلے میں اس کے، یہ حدود ہیں اللہ کی، تو نہ تجاوز کرنا اس میں، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ اگر وہ اپنے آپ چاہتی ہے کہ اپنے خاوند سے خلا لے لے تو اپنی جو اس کی مہر کی رقم تھی جو اس کو نہیں ملی ہوئی تھی، اگر وہ اس میں سے کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کو یہ حق ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس کا مہر 1,00,000 ہے تو وہ 50,000 دے کے اپنے آپ کو خلا لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ طلاق دے اس کو تیسری تو نہ حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک نہ نکاح کر لے وہ عورت کسی دوسرے سے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو نہیں گناہ ان دونوں پر، عورت اور پہلے خامند پر، کہ رجوع کر لیں اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اور یہ حدود ہے اللہ کی بیان فرماتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری طلاق کے بارے میں ہے کہ تیسری طلاق ہوگی، اب رجوع نہیں کر سکتے تو پھر عورت کو کہیں اور شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، اور اگر وہ آدمی اپنی مرضی سے اس کی کوئی سچویشن ایسے ہو گئی ہے اور وہ اس کو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت اگر چاہتی ہو تو وہ اپنے پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر پوری ہو جائے ان کی عدت تو پھر روک لو ان کو عمدہ طریقے سے یا رخصت کرو بھلائی کے ساتھ۔ یہاں پہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اور مت روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کرے گا ایسا تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر۔ اور نہ بنو اللہ کے احکامات کی ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے کی تم پر، اور جو نازل کیا اس نے تم پر کتاب میں، اور حکمت ہے نصیحت فرماتا ہے وہ تمہیں جس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور پوری ہو جائے ان کی عدت تو مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے جس پر وہ راضی ہو جائیں آپس میں جائز طریقے سے۔ اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر جب تم طلاق دے دو، فار ایگزامپل انہوں نے پہلی طلاق ہے اور عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد عورت آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو پورا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل اگر تھرڈ طلاق ہے تو اس کے بعد تو اس کو ڈیفینیٹلی وہ کہیں اور شادی کرنا ہوگی اس کو، تو یہ ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے جس سے اس کو جو رکھتا ہے تم میں ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ ہے نہایت خوب تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ بات، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچے کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت۔ اب آج کل کون دودھ پلاتا ہے 2 سال، بہت کم مائیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دودھ جو ہے وہ 2 سال تک مائیں پلا سکتی ہیں۔ اور اس باپ پر جو بچہ جس کا ہے نا وہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا ذمہ داری ہے ان دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق، کہ اگر وہ ماں دودھ پلاتی ہے طلاق کے بعد تو اس کا کھانا، اور وہ تو ویسے ریگولر اگر وہ بیوی ہے تو اسی کے ذمہ ہوگا، لیکن طلاق کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا کھانا اور اس کا نان و نفقہ جو بھی ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس بچے کے سبب۔ کہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اس کو بلیک میل نہیں کرے، اگر ماں ہے تو خامند کے پاس اگر بچہ اس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ ماں کو بلیک میل نہیں کرے، اور ماں خامند کو اس بچے کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے۔ اور وارث پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ارادہ کر لے وہ دونوں دودھ چھڑانے کا رضامندی سے آپس کی اور مشورے سے تو نہیں ہے کچھ بھی گناہ ان پر، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو نہیں کچھ گناہ تم پر، بشرط کہ ادا کر دو تم جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ
इसको जो तुम करते हो देख रहा है। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामलात में अक्सर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इतनी लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे पे इतनी तोहमतें और इल्जाम लग जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार यही बात फरमा रहे हैं कि डरते रहो अल्लाह से और जान रखो बेशक अल्लाह उसको देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। और वो लोग जो मर जाएं तुम में से और छोड़ जाएं औरतों को, तो रोके रखें अपने आप को निकाह से 4 महीने और 10 दिन। और ये उसकी इद्दत के बारे में है कि 4 महीने 10 दिन उस औरत की इद्दत है जिसका खामन फौत हो जाता है। फिर जब पूरी कर चुके वो अपनी इद्दत, तो नहीं कुछ गुनाह तुम पर इस फैसले में जो करे वो अपनी जानों के बारे में दस्तूर के मुताबिक, और अल्लाह इससे जो तुम करते हो बखबर है। और नहीं कुछ गुनाह तुम पर इसमें कि इशारे किनारे में 2 निकाह का पैगाम औरतों को या मख्फी रखो अपने दिलों में, मालूम है अल्लाह को कि तुम जरूर सोचते होगे उसके बारे में, लेकिन ना वादा करो उनसे पोशीदा तौर पर मगर ये कि कह दो कोई बात दस्तूर के मुताबिक। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर औरत अपनी इद्दत गुजार रही है तो उस इद्दत के दरमियान में निकाह नहीं कर सकती। और या फिर कोई ऐसी अगर औरत को कोई पसंद है या आदमी को वो औरत पसंद है, तो वो उस वक्त गलत तरीके से ऐसी काम ना करे। तो इससे बेहतर ये है कि इशारे किनारे से बस अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो बता दे, लेकिन खुलेआम ऐसी दोस्तियां ना करे। और ना पुख्ता इरादा करना अक्दे निकाह का जब तक ना पूरी हो जाए इद्दत अपने वक्त तक। यही बात जो मैं आपको बताई थी कि इद्दत के दरमियान में निकाह नहीं करना। और जान रखो कि अल्लाह को सब मालूम है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और डरते रहो इससे और जान रखो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और बुर्दबार है। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला जुनाहा अलैकुम, कि नहीं कुछ गुनाह तुम पर अगर तलाक दे दो तुम औरतों को जबकि अभी ना छुआ हो तुमने उन्हें या अभी ना मुकर्रर किया हो उनके लिए महर, और कुछ खर्च जरूर दो उनको उसके मुताबिक जो उसकी हैसियत है, और तंगदस्त पर है उसके मुताबिक जो उसकी हैसियत है, ये खर्च कर देना हो दस्तूर के मुताबिक लाजिम है ये नेक लोगों पर। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर उस हालत में तलाक होती है कि अभी उस आदमी के साथ जैसी रुखसती नहीं हुई है और उस आदमी ने उसको छुआ नहीं है, तो उस में अगर वो हक महर जो भी उसका मुकर्रर था अगर वो उसको अगर नहीं देता तो उस पर गुनाह नहीं है। लेकिन बेस्ट यही है कि वो अच्छे तरीके से अगर वो दे सकता है तो जरूर दे, और जो लोग जितनी उसकी हैसियत है उसके मुताबिक जरूर देना चाहिए। और अगर तलाक दे दो तुम इन्हें इससे पहले कि छुआ हो तुमने उन्हें, जबकि मुकर्रर कर चुके हो तुम उनके लिए महर, तो निस्फ है उसका जो मुकर्रर कर चुके हो तुम। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप थे और फिर तलाक हो गई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं तो फिर निस्फ हक महर अदा करना होगा, मगर ये कि बख्श दें औरतें या छोड़ दें वो जिनके हाथों में उनका अक्द निकाह है। और अगर छोड़ दो तुम ये ज्यादा करीब है तकवा के। और ना फरामोश करना एहसान करना आपस में, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं जो कुछ तुम करते हो। देखिए बार बार ऐसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये बात आती कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं जो कुछ करते हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि बंदा इस मामले में कितनी ज्यादती कर जाते हैं। क्योंकि देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जब आया था तो मुसलमानों का ये हाल था कि जब तलाक देते थे तो खुद ही उनके हस्बैंड ये दूसरे आदमी को कह देते थे कि हमारी इससे नहीं बनी है लेकिन शी इज वेरी नाइस लेडी, तो तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम इससे निकाह कर लो। लेकिन आज आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसे कह सकता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि हाफिजू अला सलाती, और हिफाजत करो नमाजों की और दरमियानी नमाज की, और खड़े रहो अल्लाह के हजूर फरमाबरदारी के साथ। अब यहाँ पे देखिए तलाक की बात हो रही है, इद्दत की बात हो रही है, ये सारी के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बात ले आए कि अपनी नमाज की हिफाजत करो, खास तौर पे दरमियानी नमाज की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यूजुअली घरों में इतनी टेंशन होती है कि नमाज कज़ा हो जाने का डर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वही रिमाइंड कराया कि नमाजों की हिफाजत करो। फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो प्यादे या सवार नमाज पढ़ लो। अल्लाह अकबर। खौफ की हालत में, ये नमाज खौफ के बारे में है कि जिस भी अगर तुम सवार हो या तुम पैदल चल रहे हो तब भी नमाज पढ़नी। और आप सोचें कि कितने लोग इतने आराम से अपने घरों में बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, और आराम से नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर।
اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं फिर जब तुम अमन पाओ तो याद करो अल्लाह को जिस तरह सिखाया उसने तुमको, वो जो नहीं थे तुम जानते। और वो लोग जो वफात पा जाए तुम में से और छोड़ जाए बीवियां, वसीयत कर जाए अपनी बीवियों के हक में नानो नुफ्के की, 1 साल तक बगैर घर से ना निकाले हुए, फिर अगर वो खुद चली जाए तो नहीं कुछ गुनाह तुम पर इस फैसले में जो वो करे अपनी जानों के बारे में दस्तूर के मुताबिक, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और मुतल्लिका औरतों के लिए भी नानो नुफ्का है दस्तूर के मुताबिक, हक है मुत्तकियों का। इसी तरह बयान फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम ताकि तुम इसको समझो। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जो निकल पड़े थे अपने घरों में से और थे वो हजारों की तादाद में मौत के डर से, तो हुक्म दिया उन्हें अल्लाह ने कि मर जाओ, फिर जिंदा कर दिया उनको। बेशक अल्लाह फजल करने वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्र करते। और जंग करो अल्लाह की राह में और जान रखो यकीनन अल्लाह बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। मंज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को एक कर्ज हसना, सो बढ़ा दे वो इसको कई गुना ज्यादा। और अल्लाह ही तंग करता है और अल्लाह ही कुशादगी करता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अब यहाँ पे एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि ये जो सूरा है सूरत अल बकरा, ये मदनी दौर की सूरा है और यहाँ पे अब क्योंकि बदर की जंग होने वाली थी, ये बिल्कुल शुरू शुरू की आयात हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को ये इनकरेज कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में अपने दीन की हिफाजत के लिए अब तुम्हें अपना माल खर्च करना होगा। कि अब यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या नहीं देखा तुमने एक जमात को बनी इसराइल की मूसा के बाद, जब कहा उन्होंने ए नबी मुकर्रर कर दे हमारे लिए एक बादशाह ताकि जंग करें हम अल्लाह की राह में। कहा उसने कहीं ऐसा होगा कि अगर मैं हुक्म दूं तुमको तो जहाद का तो तुम ना जंग करो। वो कहने लगे कि क्या हुआ है हमें कि ना लड़े। हम अल्लाह की राह में जबकि निकाल दिया गया हमको हमारे घरों से और हमारे बाल बच्चों से, फिर जब हुक्म दिया गया उनको जंग का तो फिर गए वो सवाए चंद एक के, और अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है जालिमों को। अब यहाँ पे जो वाक़या पेश किया जा रहा है वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो बनी इसराइल थे वादी यतीम में थे, उसके बाद उन्होंने यूशा बिन नून की क़यादत में फ़लस्तीन को फतह किया। और फ़लस्तीन को फतह करने के बाद उन्होंने अपनी छोटी छोटी रियासतें बना ली और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो आपस में भी लड़ना शुरू हो गए और बाहर के लोग भी उनके साथ जब आके जंगे करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर होना शुरू हो गए। तो इन्होंने अपने वक्त का नबी जो उस वक्त जिनका नाम आते सैमुअल थे, उनको कहा कि आप हमारे लिए एक ऐसा सिपह सलार मुकर्रर कर दे जिसकी क़यादत में हम जाके अब जो हमसे दुश्मन लड़ाई करते हैं हम उनसे जंग कर सके। जो हज़रत सैमुअल थे उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे लिए तालूत जो है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए सिपह सलार मुकर्रर किया है। अब उन्होंने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तालूत जो है वो तो हमसे उसके पास तो कोई ऐसा पैसा वैसा भी नहीं है और उसकी कोई ऐसी ताकत भी नहीं है उसके पास, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कैसे मुकर्रर किया। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि उसकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि वो उनका ताबूत जो था, ताबूत सकीना जिसको कहते थे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ बची कुची जैसे असा था या मनोसलवा ऐसी सब चीजें थी, तौरा के कुछ उसमें सफात थे, तो वो तुम्हें जब वो उसकी क़यादत में तुम्हें वो मिल जाएगा तो तुम्हें उससे पता चल जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही हुक्म है। अब हुआ भी यही कि तालूत और जलूत की जब लड़ाई होती है ये अपने लश्कर लेके जाते हैं। अब वो इतने बड़े लोग थे, जालूत जो था वो इतना ताकतवर और इतने बड़े बड़े लोग थे, तो ये डर गए उससे। और वहां पे क्या हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो तारीख में जो आता रवायात में आता है कि वो बकरियां चराते थे। और उस वक्त ये होता था कि जब वो लेके जाते थे अपने रेवड़ को, तो अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज आती थी जो बकरियों को नुकसान देने के लिए, जैसे शेर है या कोई चीता या इस तरह की चीज होती थी, तो वो उनका निशाना बड़ा तेज था और वो कहते कि ऐसा निशाना मारते थे कि वो वहीं ढेर हो जाता था। वो अचानक वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक आदमी है वो जोर जोर से पुकार रहा है और पूरे ये लोग जो हैं वो डर के साइड पे आगे नहीं आ रहे और वो उनको ललकार रहे जंग के लिए। तो इन्होंने जाके जालूत से ये कहा कि इन्होंने जाके तालूत से ये कहा कि मुझे तुम इजाजत दो तो मेरा निशाना बहुत ऐसा है कि मैं इसके मुकाबले में जा सकता हूँ।
تو جب انہوں نے اپنا نشانہ اس پہ، وہ کہتے ہیں گلیل ہوتی ہے اس طرح کی چیز ان کے پاس ہوتی تھی، تو انہوں نے جب نشانہ اس پہ لگایا تو جالوت جو ہے وہ ادھر ہی، وہ کہتے کہ ڈھیر ہو گیا، اس کی آنکھ پہ جا کے، وہ اس نے پورا پہنا ہوا تھا جیسے، لیکن صرف آنکھ والی جگہ اس کی تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا، اور ایسا نشانہ لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد طالوت جو تھے انہوں نے ان کی شادی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے کر دی، انہی میں سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ اور اب آگے دیکھیے کہ قصہ کہاں پہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مقرر فرمایا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ۔ وہ بولے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے اسے بادشاہی کا حق ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے، اور دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور نہیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وسعت مال میں۔ کہا اس نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور زیادہ دی ہے اسے فروانی علم میں اور جسم میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک یہ نشانی ہے اس کی بادشاہی کی، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہے تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ بچی کھچی چیزیں اس میں ہے وہ چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت لشکر کے ساتھ، کہا اس نے کہ بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک نہر سے، پس جس نے پانی پی لیا اس میں تو وہ نہیں ہے میرے ساتھ، اور جو پانی پیے گا اس سے تو بے شک وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو چلو بھر پانی، مطلب تھوڑا سا پانی پی لے تو پی لیا انہوں نے اس میں سے سوائے چند ایک کے ان میں سے۔ پھر جب وہ نہر کے پار پہنچے تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں طاقت مقابلے کی ہمیں آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ملنا ہے اللہ سے، بارہا ایک قلیل جماعت غالب ہوتی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابلے میں آئے وہ جالوت کے اور اس کے لشکر کے، دعا کی انہوں نے، اے ہمارے رب عنایت کر ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح عطا فرما ہمیں ان لوگوں پر جو کفار ہیں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا ان کو جو کچھ چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے تو نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ بڑا فضل کرنے والا اور اہل عالم ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ، اور بے شک تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ رسولوں میں سے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ تھے، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔